جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ خدا ان کے پڑھے اور سنے ہوئے کلام پر خدا باپ کی برکت نازل ہو، آمین۔ 10ویں صدی کے آخر میں مقدس سمن دباغ موچی نام کا ایک شخص ہو گزرا ہے جس کے وسیلے سے خدا نے بہت بڑا کام کیا، اور اسی دور میں المعز الدین نام کا ایک خلیفہ تھا جو مصر میں ہی رہا کرتا تھا اور یہودیوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ کروایا کرتا تھا۔ اور اسی دور میں ایک جیکب نام کا شخص جو یہودی تھا اور یہودی ہونے کے باوجود اس کے اندر اس بات کا عنصر موجود تھا کہ وہ یہودی ہوتے ہوئے جاب نہیں مل سکتی، اس لیے اس نے مسلمان ہو گیا اور عہدہ پانے کے لیے حکومت میں عہدہ پانے کے لیے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب اسے مسیحیوں سے بہت نفرت ہے، اور جب اسے مسیحیوں سے بہت نفرت ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ مصر میں رہنے والے پوپ ابراہیم سے مناظرہ کرنے کے لیے خلیفہ سے رابطہ کیا کہ خلیفہ جو ہے وہ پوپ ابراہیم کو بلائے تاکہ وہ اس سے رابطہ قائم کرے اور اس سے مناظرہ کر سکے۔ اب ابراہیم جو پوپ ہے وہ خلیفہ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ مصر میں آتا ہے، اور جو جیکب ہے وہ اپنے دوست موسیٰ کو بلاتا ہے اور موسیٰ کے ساتھ جو ہے پوپ ابراہیم جو ہے مناظرہ کرتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جیکب کا دوست جو موسیٰ ہے جب وہ مناظرہ کرتا ہے پوپ ابراہیم کے ساتھ تو وہ مناظرہ ہار جاتا ہے، اور اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے جیکب اور موسیٰ جو ہے وہ عہد جدید کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعے سے مسیح کی کہی تمثیل جو ہے اسے نکالتے ہیں۔ اور وہاں پر تمثیل کیا ہے کہ اگر تمہیں رائی کے دانے جتنا ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہو تو یہ سرک کر دوسری جگہ چلا جائے گا۔ اب وہ خلیفہ کیا سوچتا ہے؟ خلیفہ کے پاس جب وہ آیت لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ یہ آیت میں مسیحیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں رائی کے دانے جتنا ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہو تو وہ سرک کر دوسری جگہ چلا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ خلیفہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ مصر میں مقتام نام کا پہاڑ ہے، اگر وہ سرک کر دوسری جگہ چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مشرقی اور مغربی حد میں جو لوگ بستے ہیں، شہر بستا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آمد و رفت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کاروبار جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ پوپ ابراہیم کو بلاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو کہ تم ایک سچے مسیحی ہو، اگر تم سچے مسیحی ہو تو میں تمہارے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو اس پہاڑ سے کہو کہ یہ اپنی جگہ سے صرف اور دوسری جگہ چلا جائے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے سامنے 3 شرائط ہیں، اگر تم اس پہاڑ کو سرکا نہ پائے تو پھر کیا ہوگا کہ تم مصر سے چلے جاؤ گے، یا پھر تم مسلمان ہو جاؤ، یا تمہیں تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اب 3 شرائط کی پریشانی کی وجہ سے پوپ ابراہیم جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور اپنی کلیسیا سے اور مقدسین سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، ہمارے اوپر جو آزمائش آ چکی ہے اس کے لیے دعا کرو تاکہ خدا اس آزمائش کو ہم میں سے ختم کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تیسرے دن جب وہ دعا میں مگن ہے تو خدا کا فرشتہ رویا میں ان کو دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کے بندے پریشان مت ہو، اس چرچ سے باہر جا اور لوہے کے دروازے کے باہر تجھے مشکیزہ اٹھایا ہوا ایک بندہ ملے گا، تو اسے یہ کہنا کہ یہ میری مشکلات ہے اور میں اسے حل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے خدا کے بندے نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تیرے کام آؤں گا، لیکن بتا کام کیا ہے۔ وہ ساری ڈیٹیل اس کو بتاتا ہے اور مقدس سمن دباغ موچی جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے یہودی قوم اور مسیحی قوم جو ہے وہ دونوں لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہوں گی، اور وہ کیا کہتا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، پوپ ابراہیم کے ساتھ جو جائیں گے، وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار تم نے دعا کرنی ہے، پرسش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور تیسری بار تم نے کہنا ہے کہ خدا ہم پر رحم فرما، اور تم نے کیا کرنا ہے کہ پہاڑ کے اوپر صلیب کا نشان لگانا ہے۔ اور جب 3
मुआवजा करेगा, वो तुम्हारी मुश्किलात को हल करेगा और पहाड़ जो है वो सिरक कर दूसरी साइड पर चला जाएगा। और इसी तरह से पोप इब्राहिम जो है वो करते हैं, और तीसरी बार जब वो पहाड़ पर सलीब का निशान लगाते हैं, कहते हैं ऐ खुदा हम पर रहम फरमा, तो पहाड़ अपनी जगह से सिरक कर शहर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। खलीफा वहां पर देखकर कहता है खुदा अजीम है, खुदा अजीम है। और जैसे वो ऐसे कहता है, वो खलीफा जो है वो पोप की तरफ दौड़ा जाता है और कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है कि खुदा तुझे तेरे दुश्मनों से आजाद रखे। अजीजों, अगर खुदा पोप इब्राहिम के साथ था, मुकद्दस समान दबाग मोची के साथ था, तो आज खुदा हमारे भी साथ है। और आज इस तरह हम खुदा के साथ के बारे सीखेंगे। जब हम फिलिपियों 4 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत का मुताला करते हैं, तो अजीजों यहां पर लफ्ज गर्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए यूनानी लफ्ज लोएपोन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है बाकी बिला आखिर। इस लफ्ज के इस्तेमाल से पौलुस का अपनी कारीन को इशारा देना है कि वो अपनी बातों के इख्तिताम पर आ चुका है। असल में पौलुस रसूल ने इन अच्छी बातों की जो फरिस्त आयत में दी है वो तादाद में 8 है। लफ्ज सच के लिए यूनानी लफ्ज एथलीस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है असली और हकीकी। और शराफत के लिए यूनानी लफ्ज सिमनोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब अखलाकी लिहाज से दिलकश। और वाजिब के लिए यूनानी लफ्ज डाइकोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब राज की बातें। और पाक के लिए यूनानी लफ्ज हैग्नोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब आला और अरफा, इखलाक और किरदार। और पसंदीदा लफ्ज के लिए यूनानी लफ्ज पेरोसर्फिलेस इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब काबिले तारीफ। और दिलकश के लिए यूनानी लफ्ज यफिफोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है शोहरत वाली बातें। और नेकी के लिए यूनानी में लफ्ज आटे इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है बर्तरी और फजीलत। इसी तरह तारीफ के लिए यूनानी लफ्ज इपाइनोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है तहसीन के लायक बातें। असल में अजीजों, खुदा का कलाम हमें तलकीन करता है कि हम अपनी नेक नामी को बरकरार और कायम रखें, क्योंकि पौलुस रसूल अपनी आजमाई हुई बातों की सदाकत अपनी कारीन पर ज़ाहिर करता है। वो उनको बताना चाहता है कि मुस्बत अमाल हमेशा मुस्बत सोच की वजह से वकू में आते हैं। यहां पर पौलुस रसूल जो है अपने आप को बतौर नमूना पेश करता है। वो कलीसिया फिलिप्पी के सामने अपनी मसीही किरदार को मसीह की तकलीद के लिए नहीं पेश करता, बल्कि पौलुस का ये अंदाज जो है वो मसीह जैसा है। और उसका मकसद ये है कि अपने मुआशरे और सकाफत का मुशाहदा तो करो, लेकिन तकलीद जो है वो मसीह के किरदार की करो। जब दूसरे नुक्ते पर पौलुस रसूल फिलिप्पी की कलीसिया को कहता है जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और उन पर अमल करो। हाँ, यहां पर सीखने की ये लफ्ज जो है यूनानी में मेंथनो इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है इल्म में इजाफा होना। और हासिल की के लिए यूनानी लफ्ज पैरएमेनो इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है किसी दूसरे से लेना। और सुनने के लिए यूनानी लफ्ज एको इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सुनने की सलाहियत। जबकि देखने के लिए यूनानी लफ्ज आइडो इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हवास से मालूम करना। अजीजों, मुसन्नफ चाहता है कि फिलिप्पी की कलीसिया खुदा की पहचान और अंजील के बारे में जो कुछ मुझसे हासिल किया है वो उन बातों पर अमल करे, क्योंकि वो अपने बारे में पाक रूह के वसीले से जानता है कि जो मजाज और किरदार उसमें मौजूद है वो यीशु मसीह के मुताबिक है। असल में वो फिलिप्पी की कलीसिया को
और खुदा का वादा है कि वो इत्मीनान का चश्मा है जो तुम्हारे साथ रहेगा। साथ के लिए यूनानी लफ्ज मीत इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सहारा। अजीजों, खुदा का इत्मीनान दिया जाता, खुदा का इत्मीनान उन लोगों के साथ रहता है जिनके पास उसका बेटा है। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 7वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ऐसी जिंदगी जो मसीह के किरदार पर मबनी हो, खुदा उस जिंदगी के साथ है और उसे अपना इत्मीनान भी बख्शता है। हर फर्द अपने और दूसरों के साथ इत्मीनान और हम आहंगी में रहना चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है। विलियम मैकडोनल्ड बयान करते हैं, खुदा का साथ दुआ वो लोगों का हिस्सा और बखरा है। यहां खुदा का साथ उन लोगों का रफीक और साथी है जो पाक है। अपने गहरे रूहानी मानी के एतबार से खुदा का साथ किसी चीज की उस जगह मौजूदगी का नाम है जहां फितरी तौर पर उसका ताल्लुक है, जिसे जैसे खुदा ताला ने आदम को खलक किया और बागे आदम में रखा तो उन्हें वही देखना चाहता था। पैदाइश 3 बाब उसकी 8वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो शायद के मुताबिक खुदा के साथ के बरक्स आदम ने इंसानी तारीख में पहला गीत मोहब्बत का नगमा जो आदम ने अपनी बीवी हवा के लिए कहा, मिलाकर इन दोनों की नाफरमानी की वजह से खुदा का गजब इन पर बढ़ गया, लेकिन फिर भी खुदा उनके साथ था। ऐतिहासिक में हमें तमाम तरह के बुरे हालात के बावजूद खुदा के रूहानी साथ की जबरदस्त मिसाल मिलती है। जब हम दूसरा सलातीन उसका 4था बाब का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें शुनीमी औरत का जिक्र मिलता है जो बेऔलाद है और एलीशा नबी की दुआ के वसीले से एक बेटे को जन्म देती है जो कुछ अर्से बाद मर जाता है। शुनीमी औरत अपने बेटे की जिंदगी मांगने के लिए एलीशा नबी के पास जाती है। जब एलीशा नबी के खादिम से मिलती है तो वो पूछता है, खैरियत है? लफ्ज खैरियत के लिए यहाँ पर लफ्ज जो है सोलोमोन इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ठीक है, जबकि यूनानी में खैरियत के लिए यूनानी लफ्ज ताताइकियो इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सलामती है। अब शोरीमी औरत जो है उस वक्त तक ये नहीं कह सकती थी कि वो खैरियत से है जब तक उसके पास वाकई गैर मामूली खुदा का साथ ना होता। शुनीमी औरत के वाकया से अंदाजा होता है कि जो कुछ उसके पास था वो दुनिया उसे नहीं दे सकती थी। ये खुदा का इत्मीनान था जो आम और तमाम समझ से बाहर है। ये इत्मीनान रूह का फल है। इसी का वादा खुदा ने अपने कलाम में किया है। रोमियो 15वां बाब उसकी 13वीं आयत के मुताबिक, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से महमूर करेगा, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। C.S. लुईस बयान करते हैं, खुदा का साथ जहाज के आलात की अच्छी हालत में जहाज रानों की हम आहंगी और इर्द गिर्द की कश्तियों से टकराने से बचने की हालत है, जिसमें हम ये ख्याल करते हैं या रखते हैं कि दूसरे गलतियां करेंगे। अजीजों, खुदा के साथ में जिंदगी बसर करने के लिए हमें लाजमन खुदा से कहना है कि वो हमारे तमाम दाखिली इंतजार को खत्म करके और हमें बातनी इत्मीनान बख्शे, और ऐसा सिर्फ खुदा के फजल और हम में रूह कुदस के काम के वसीले से मुमकिन हो सकता है। अजीजों, हम आज मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि खुदा के साथ की वजह से बहुत ज्यादा मौजज़ात होते हैं, लेकिन उलमा इकराम इसके बारे में 2 नजरियात पेश करते हैं। एक का नाम है कॉन्टिन्यूज़म और दूसरे का नाम है सेशनिज्म। कॉन्टिन्यूज़म में आते हैं कैथोलिक और पेंटिकॉस्टल लोग, जबकि सेशनिज्म में प्रेस्बिटेरियन और दूसरे में रिफॉर्म चर्च और एंग्लिकन चर्च आते हैं। इनका ईमान ये है
کہ मोहजात जो है वो खुदा की साथ की वजह से होते हैं कैथलिक लोगों का, जबकि सेक्शनिज्म वाले लोग जो है वो ये कहते हैं कि मोहजात नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूं उनका नजरिया ये है, वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो मोहजात कब होते थे, जब खुदा के कलाम की नज़ूली होती है। वो कहते हैं कि जब खुदा का कलाम जो है वो नाजिल होता है, तीन शराइत रखी हैं। वो कहते हैं कि जब खुदा का कलाम नाजिल होता है, जब कोई अजीब काम होता है, और फिर खुदा जो है वो अपना मौज़ा रूनुमा करता है। अब तीन शराइत हैं। जब हम तीन शराइत को देखते हैं तो जब अहद अतीक का हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें अजीब काम मिलता है। कैसे मूसा जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाल कर लेकर आता है तो मूसा जो है कौम को कहता है कि आज तुम खुदा की नजात को देखोगे। वहां पर क्या है, खुदा का कलाम पहले नाजिल हुआ है, और दूसरी तरफ खुदा से कहता है कि जो लाठी तेरे हाथ में है उसे समंदर पर मार, और वो क्या होती है कि समंदर जो है वो दो हिस्से हो जाता है। ये अजीब काम है जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ। तीसरा काम यह है कि लोग जो है वो खुशमी से गुजर कर वो अपनी राह लेते हैं, और ये मौज़ा रूनुमा होता है। जब हम अहद जदीद का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें मसीह यीशु जो खुद कलाम है, चलता फिरता कलाम है, वो एक अंधे को आंखें देते हैं, उसकी आंखों में क्या करते हैं, मिट्टी जो है वो सानते हैं, उसकी आंखों में लगा देते हैं। और तीसरी बात क्या होता है, उसे कहते हैं चलो जाकर हौज में दो ले, और उसकी आंखें जो है वो बीना हो जाता है, वो देखने लगता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये मौज़ात हैं जो हुए हैं। लेकिन आज इस मौजूदा दौर में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि आए और अपनी शिफा लें या अपना मौज़ा लें। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो मौज़ात हो रहे थे और आज मौजूदा दौर में लोग कहते हैं कि वो शिफाएं हैं, उलमा इकराम के नजदीक वो शिफाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो कदीमुल अयाम में खुदा मौज़े करता था तो खुदा उनके साथ था, तभी वो मौज़े होते थे। और आज अगर मौजूदा दौर में अगर मौज़ात नहीं हो रहे, अगर शिफाएं हो रही हैं, तो मैं समझता हूं कि खुदा की साथ की वजह से हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर शिफाएं भी हो रही हैं तो वो भी खुदा के साथ की वजह से हो रही हैं। मसीह में मेरे हम साथी, आज हमने बड़े इख्तिसार के साथ खुदा के साथ के बारे में सीखा, और जितनी बातें सच हैं, शराफत की हैं, वाजिब हैं, पाक हैं, पसंदीदा हैं, दिलकश हैं, नेकी की हैं और तारीफ की बातें हैं, उन पर अमल करना लाजिम है। क्योंकि फिलिपियों 4 बाब उसकी 9वीं आयत जो है वो इस बात का सबूत देती है, खुदा इस बात का सबूत देता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। अजीजों, इंसान की बड़ी अजमत को जाहिर करने के लिए दुख तकलीफ आ सकती है, जिसका सबूत हमें मसीह यीशु की जिंदगी से मिलता है। जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में दुआ कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका जो पसीना है वो खून की बूंदें बन बनकर वो जमीन पर गिर रहा है, क्योंकि गुनाहों का बोझ इतना ज्यादा है कि वो खून की बूंदें जो है उनका वजन इतना, वो जो गुनाह है उनका बोझ इतना ज्यादा है कि पसीना जो है वो खून की बूंदें बन बनकर जमीन पर गिर रहा है। हम देखते हैं कि वहां पर मसीह यीशु के साथ उसका बाप है और बाप उसे जोर दे रहा है, और हम देखते हैं कि उसी जोर की वजह से वह सलीब पर फतह पाता है। लेकिन वो दुआ करते हुए फिर भी यही कहता है कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी वो कहता है कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यशायाह 14वां बाब और उसकी 31वीं आयत फरमाती है, खुदा का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे, वो चलेंगे और मादा ना होंगे। अजीजों, हमारे दुख हमें मौका फराहम करते हैं कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर अपने ईमान की मशक करें। अगर हम आज़माइश में खुद को मसीह के सुपुर्द करेंगे तो वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमारे दुखों में हमारे साथ रहेगा, ताकि हम हौसलामंद, मजबूत और वफादार रहें, ताकि खुदा हमारे साथ है। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले बरकत दे।